facilitators with you all who will guide you throughout this program. Basically, this is a program which is powered by Kaggle and sponsored by Google, under which you all have to complete all these 8 certifications, and these will be guided lessons along with some hands-on activities. So let me just go through the first, that is Introduction to Machine Learning. When you will click on this, you can see, first of all, you have to register on Kaggle. I have already done it. You can just simply, okay, let me try it with some of my other account. Okay. So when you will visit the link, it will look something like this. Then you have to register your account. Simply go with registration with Google. Click on this link, and you have to fill few details, and then you will be in. So on the first part, they will give you how model works, and this lesson they will have some textual data like introduction, improving the decision tree, and so on and so forth. After that, they will have some hands-on labs also, which I have already completed. Like I think this was it. Yeah, this is it. So they will first train you, and then you have to perform all these activities on hands-on labs. So I think this is clear to you all. For the links of these certifications, I will paste them all on the WhatsApp group. Along with that, you will also receive an email regarding the complete course material. So hope it is clear to you all. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay, thank you. Kaggle is provide free certification. Pardon? Yes, Abhishek, please go ahead. Paid है क्या free है? No. All these certifications are completely free. All entire training with GDSC will provide, that will be completely free of cost. And you may get some complimentary goodies also for completing this. नहीं GDC आपका ये सेशन किया तो आपकी तरफ से मिलेगा सर्टिफिकेशन या मेरे को Kaggle पे जाके फिर से कोर्स करना पड़ेगा? As such, you will get the certification only from Kaggle, but we are planning something to give some certifications from GDSC and also, but I cannot promise you this right now. But yeah, if you will complete the courses on Kaggle, then for sure you will receive the certifications. And if any one of you complete the entire series, then definitely we will issue the certificate. If you will complete 8 certificates, we will float a form by 2nd of October. You all have to fill. If you will complete all these 8 certifications, we will give a certificate from Google DSC also. After completing course on Kaggle, how to download certificates? Please tell. All right, so I haven't gone through that. All right, I will provide you a PDF kind of thing, completely guidelines along a complete step-to-step guideline how to download the certificate, because I haven't completed any certification on Kaggle, so I cannot tell you about this right now. But yeah, one of my facilitator has done it. Then for sure he will help you on that. Is it fine? Okay, thanks. And guys, all of you, please unmute yourself and be interactive. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार सो रहे हो, क्योंकि सामने वाला जो सेशन ले रहा होता है ना, they expect that audience should respond. नहीं तो लगता है कि सब सो रहे हो, पर सेशन लेने में मजा नहीं बोला था पहले कि म्यूट कर रखना. अच्छा, थैंक यू रोहन फॉर अनम्यूटिंग. सुशांत, यू कैन स्टार्ट नाउ. बाकी किसी को अभी केगल से लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सारा क्लियर है? Yes, sir. Okay. So, may I start? Yeah, please. Okay, so once again, good evening, everyone. And after this, and thank you, Arshad, for this brief introduction about the program. So before starting with the hands-on problems and creating real-life models, today I'm going to tell you the brief of machine learning, like what is machine learning and how machine learning is used to build models and how we can proceed forward with it.
See, okay, so today I'm going to talk about, first of all, what is machine learning. Then I will give you all a quick summary of the types of machine learning. And then what are the problems in machine learning and their types also. What are the common machine learning problems which we face and which we try to solve. Then how a problem is framed in machine learning. And then I will do a small hands-on demo on linear regression model so that you can get an idea of how actually a model really works. Okay. So We'll for wind up अगर it कुछ in 45 minutes probably. okay, ठीक है तो आई विल रिपीट द सेम थिंग इन हिंदी ऑल्सो. ओके, किसी को कुछ डाउट हो तो बीच में पूछ लेना. ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग कैसे यूज होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स कैसे फ्रेम होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मशीन लर्निंग? Anyone in the audience would like to say something on this? What do you understand by machine learning? Anything. No one is going to. A way to make machine learn like a human. Okay, thank you, Ujjwal. So, as Ujjwal said, Yeah, Pawan was saying something. Pawan, please go ahead. Ability to learn the machine by explicitly itself. Exactly. So, machine learning is nothing but just making the machine understand, making the machine learn. See, machine learning is basically a problem domain, which means that because we face many problems in making the machine learn. So, that are the and now we are going to study about the solution of that problem, how we are going to teach our machine, how we're going to make our machine learn something new. Okay, so machine learning kya hota hai? You can understand it by simply a simple word, EPT. Okay, what do you understand by EPT? E for experience, P for performance, and T for task. Just keep this word in mind, because machine learning is a study of algorithms that improves their performance at some task T with some experience. So just keep this in mind, and you will be able to figure out how a machine learning problem is solved and how they are how a model is framed. Okay, so just keep this. Is anyone asking something? Yes, Ujjwal, please go ahead. Yes, Ujjwal. Sir, I want to know how come machine learning is a problem domain. So, can you please explain? Okay, so machine learning is a problem domain because it's called a problem domain because we face many problems. We face different kind of problems, and how we want to teach our machine. So that problem, because of that problems, we are calling machine learning as a problem domain. And what are that different problems we are going to study forward? Please have some patience. Okay, Ujjwal, is clear? Yeah. Okay. So now we're going to say, how does a machine learning work basically? For example, let's think that we have created a machine learning model. Okay. Then what are we going to do? We'll give some input. We will give some input data to our model. And then what our model will do? It will analyze that data. Okay. And then based on that data, it will figure out some patterns between the data. Okay. And उन problems को, उन patterns को figure out करने के बाद, that machine will, that model will make some predictions, basically, and give some outputs. And then at last, to improve itself, it will store some feedback from the user. So in simple word, machine learning works like this. We give some input data, our model analyzes the data, and then it finds a pattern between the data, and then based on that pattern, it makes the following predictions. Okay, so in brief, is it clear what's a machine learning and how a machine learning model works? Yes, sir. Okay. Now, we are going to study about some what are the types of machine learning. Okay. Ki machine learning, what are different kind of problems? Ujjwal, listen. You're asking the same thing, na? Ki what are the how is called the problem domain? Okay. So basically, in machine learning, we have different types of learnings. First is supervised learning, then unsupervised learning, then reinforcement learning. There are many more, but mainly we discuss about these three today. Okay. Then what is first of all supervised learning? Okay. That learning which deals in classification and regression. Basically, I will tell you what is classification and what is regression. Okay. In supervised learning, we have
labeled data set. Then now what is labeled data set? I will tell you with the help of example. Let's think of an apple. Okay, if I show you an image of an apple, how do you all we all know that it's called an apple because we have given this label, a name to that object, which is apple. So it's a label. That's what we call a labeled data set. But I simply, if I show you an एक मैंने कोई अजीब सा पत्थर दिखा दिया, then how will you figure out what is that rock? You cannot, na. So we don't have label for that. So that's what labeled data set is, and that is what unlabeled data set is. So in supervised learning, we deal with labeled data set, which means we have given some label to our object. Okay. Then we have unsupervised learning, in which we done clustering or associativity. And don't panic. I will explain one by one what is classification, what is regression, and what is clustering with the help of a good example. Okay. In unsupervised learning, we go for unlabeled data set. And then we have our third type, which is reinforcement learning. In simple word, what is reinforcement learning? You can just say that learning from mistakes. Like if you are walking on a road and if you if you hit something, okay, anyone asking a doubt? Yeah, Shushan, go ahead. Guys, we will take the doubts at the end. If you encounter something urgent, then you can just, raise your hands or unmute yourself directly. Why there is a need of unlabeled data? You cannot say that there's a need of unlabeled data. There are unlabeled data. You don't know everything about everything. Okay, Ujjwal. So you do our model doesn't know कि ये चीज ये है ही, मतलब इस चीज का ये नाम है ही. Based on some similarities and some characteristics, it just combines them and make a cluster of that data. I will tell you what is clustering in unsupervised learning. Just have some patience. Okay, and as I was telling about reinforcement learning, okay, so reinforcement learning is basically learning from mistakes. Like if you're playing a game, how you upgrade to a next level? By getting some rewards, by getting some points, and how you earn some points, basically, when you achieve something, when you do something good. Okay, so that is what reinforcement learning is. Okay, then now we are going to discuss about what are the problems in machine learning. Till now, is it clear what are the types of machine learning and how they are different from each other? Guys, please answer. If all of you are attending the session, please be, active. Clear हुआ अभी तक सब? Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. Please answer. Suppose I have given an image of apple to the model, and I have not labeled it. And again, I am giving a image of apple, which machine learning technique the model will use to tell me which kind of fruit it is or how it will identify. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैंने पहले से एक एप्पल का इमेज अपने मॉडल को दिया हुआ है, मैंने बताया नहीं है कि ये एप्पल है. अब मैंने फिर से एक एप्पल का इमेज अपने मॉडल को दिया है. नाउ व्हाट इट विल डू, मतलब वो कैसे कुछ भी बता पाएगा कि ये पुराना वाला एप्पल है कि क्या है, कि किस मशीन लर्निंग टेक्निक के अंदर आएगा? Supervised. Unsupervised. Unsupervised. Supervised. 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 Okay. Let me clear how it is. The answer is unsupervised learning. Okay, and let me tell you how it's unsupervised learning. Shushan, it's unsupervised, no? Yeah. हाँ, unsupervised. It's unsupervised. Okay. So like मैं जैसा कहा कि in supervised learning we have what? Labeled data set. Yeah. Labeled. Okay. And in unsupervised we have unlabeled. Unlabeled data. So as Harshit said कि we have हमने एक फोटो दिया है मशीन को अपने एप्पल की, and we haven't said to a machine that it's an apple. We have just shown the image and the machine has stored the image of apple in itself. Yeah. Okay, but it's not labeled that it's an apple. बस उसने वो फिगर अपने पास रख लिया, and then उस एप्पल की जैसे ही मैं एक और इमेज उसको मशीन को दिखा रहा हूँ, ठीक है,
तो और लेकिन मशीन को पता है नहीं कि वो एप्पल है क्या है, लेकिन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज फ्रॉम प्रीवियस पिक्चर जो हमने मशीन को दिखाई थी, उसको लगेगा हाँ ये दोनों इमेज तो सिमिलर है देखने में, दे आर सिमिलर, क्वाइट सिमिलर, तो वो क्या करेगा, उन दोनों को एक साथ रख देगा. So that is what we call unsupervised learning. We haven't given the data, we haven't given the label, but we know that those two objects are similar. So it will be kept as together. So that is what unlabeled data set is, and that is what labeled data set is. और अगर मैं स्टार्टिंग वाले इमेज को बोल देता कि नहीं एप्पल है, और सेकंड वाले इमेज जब मशीन को मैं शो करता, तो our machine will automatically tell you that it's an apple. Okay, it's clear now, is it? Yes, sir. Yes, please. Okay. ठीक है. नेक्स्ट अब आते हैं कि ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. ओके, नाउ वी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन मशीन लर्निंग which we are going to face or which we are going to solve. ठीक है. तो बेसिकली मशीन लर्निंग in starting I told that machine learning is a problem domain. ठीक है. So we can also say that machine learning can also be defined by the problems being solved. ठीक है. Now अब देखो यहाँ पे दो तरीके होते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं मशीन लर्निंग के, वो कैसे फेस करते हैं, लाइक उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक होता है इजी वे, एक होता है स्मार्ट वे, और एक होता है हार्ड वे. द हार्ड वे इज दैट यू लाइक तुम सारे इक्वेशन लिख रहे हो, सारे पूरे इमेजिन कर रहे हो, उसको बहुत हार्ड वर्क करके कर रहे हो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन तुम कंप्लीट कर ले रहे हो. स्मार्ट वर्क क्या है, व्हाट इज स्मार्ट वर्क? यू आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम बट टेकिंग लेस टाइम एंड विद एफिशिएंट मेथड. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस इन मशीन लर्निंग? Many of you have used Gmail. We all use Gmail. We all use mails. ठीक है. वहाँ पे Gmail में कॉलम होता है ना साइड में, स्पैम. तो आप उसको कॉलम को कभी इफ यू ओपन समटाइम्स कॉलम, तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे मेल्स हैं अगर आपने कभी ओपन नहीं किया तो. तो स्पैम बेसिकली क्या होता है कि समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, समथिंग विच इज लाइक फेक और समथिंग. So how does the Gmail recognizes that the coming mail is a spam or a not spam? So basically that is done with the help of machine learning. Like when you have a mail, okay, our spam returning basically it's a machine learning model, and it will detect that whether the mail is a spam, whether to send the mail to the spam box, or to send the mail to the normal inbox. That is one scenario. Another one is face detection. Many of you have used face detection. We all have face locks in our mobile phones, laptops, and then that is also the same thing which we like. If you can see in this image, our machine recognizes that that's like 4 or 3 objects in this image, and it will, with the help of the algorithms, with the help of the codes which we have written in the model, it will predict whether this is a face. And how now I'm going to tell you how this face detection is going to work. So when you show a face to a machine, okay, the first thing the machine does is it creates a face print of the face. Basically it converts your face into a set of data points, and it is unique for everyone. Okay, then it stores that data in its database, and when the next time when the same face comes in front of the camera, it compares the face print to the database and try to find a match. If the face matches with the database, with the face in the database, then it unlocks your phone. Otherwise, it say that no face found, no face detected, something like this. So it's clear how a face recognition works and how a spam detector works. Yes, sir. Okay. Another one is like stock trading. I don't know if you are interested in stock trading or not, but if you are, then, and if you're a machine learning user, then you can easily excel in that field. And how does this work? Basically a stock prediction model, how does it work? It's based on the historical data and plus news headlines. Basically this is your data set, okay, and we give this to our machine learning model, and the model will process the data, and as I said in the previous slides, that it will just based on this data, it will find some patterns, and based on that patterns it will predict the future some future values. In stock market there is a term called stock faith. Stock faith is something which we call as the future values of the stock.
ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो मशीन लर्निंग यूजफुल उसके लिए भी. ओके, मुझे भी So- पैसे कमाने हैं. नाइस. पैसे तो हाथ का मेल है यार. Sir, Okay. with Yes. which algorithm we are going to solve these problems? The facial recognition one and this one. Okay. Nice question, Ujjwal. See, in stock trading, basically you can see that it's a graph on some data points, and so in this we are going to use regression. What is regression? As in regression, we told that regression is a part of supervised learning. Okay. So I will tell you how regression works. After this presentation, I will give you a small hands-on on linear regression model, in which I will give you the data set, and I will show how that data set is stored and uploaded on the platform in the model, and then how based on that data set we are going to make some predictions. Don't worry, I will tell you. Okay. Sir, Uh, where do we apply these algorithms? Like, okay, nice question. Basically, there you can perform machine learning in many languages, but mainly we perform machine learning in Python. And for Python, we have many platforms like Jupyter or PyCharm or VS Code. You can do it anywhere if you have Python. But for machine learning, you have to download some libraries. Okay. Basically, in machine learning, one of the most famous libraries is scikit-learn. Many of one, if you ever heard, then scikit-learn is Yes. basically something Yes, which killer. stores, sklearn or scikit-learn you have. Okay, so basically that is a library which stores many of the functions of machine learning, or how something like linear regression or logistic regression or SVM. These are algorithms, different types of algorithm: linear regression, logistic regression, SVM. These are basically different types of algorithm which we use depending upon the problem. Okay. So Okay, sir. another example of machine learning problem is like the virtual personal assistant. I know everyone you have used Alexa, Siri, or Google, or Cortana. I don't know if you have used, but it's also a good one. Okay. So basically, the virtual personal assistant or voice assistant also work with the help of machine learning. Okay. And let's see how this works. Basically, this thing works on your voice, on your language detection. Earlier in the facial recognition system, we were using the face print. Okay. And I will tell you, just try to remember that face print is basically is captured or drawn with the help of a library called MediaPipe. Okay. I will tell if after this session, when we are gonna do some real life projects like some face detection or hand detection, then I will tell you how MediaPipe is used. Okay, so this was basically used on your visual impact. Okay, OpenCV is basically used for these type of purposes. And now for virtual personal assistants or ये आपके voice assistant जो होते हैं, we are going to use the language or the natural language processing, as you have heard. Now let's discuss what is that. Let's imagine फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज अ वेक वर्ड. लाइक अब गूगल, आपका फोन बगल में खड़ा है, अगर आप उसको इफ यू से ओके गूगल 3 टाइम्स, इट विल ऑटोमेटिक या हेलो सिरी सी, लाइक मैंने भी ओके गूगल बोला, मेरे फोन में ओके गूगल ऑन हो गया अपने आप. ठीक है, तो इफ यू से, तो दैट्स व्हाट वी कॉल अ वेक वर्ड. आप कुछ भी बोलो तो लाइक एक्टिवेट करने के लिए उस वॉइस असिस्टेंट को. ठीक है, तो आपने वो वेक वर्ड बोला. Now the voice assistant is activated. Now if you ask the Google what is the score of India's first Pakistan match, or what is the points table, whatever, then it will first of all, क्योंकि मशीन आपके लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझेगा. ओके, वो पहले तो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ कुछ बोल रहा है बंदा. ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ NLP it will process the language, it will process the whatever you have said, and in its वो अपने भाषा पहले उसको कन्वर्ट करेगा. ओके, देन उस पे बेस पे वो अपना आउटपुट देगा. इट विल गिव द आउटपुट बेस्ड ऑन दैट डेटा एंड डायलॉग मैनेजमेंट. लाइक यू नो देयर आर सम प्री रिकॉर्डेड कमांड्स इन Alexa or Siri. Okay, and then that text is basically given output as which we listen that okay, this is the score, this is the time today,
or whatever. So this is how a virtual, like voice assistant works. Okay, so this was it. Now, as I discussed in the starting, okay, till now is it clear? Like these were the examples of like machine learning problems. What are the different kind of problems which we are going to tackle in machine learning? Okay, so these things are clear. Yes, sir. Okay, and don't worry, we will we will do the code. We'll make the model of each and every thing, so that after this end of the session, you feel confident that I can create a model. I can make predictions. I can do various things in machine learning. So Okay. okay, so like in machine learning, what we have, the first type of machine learning. Yeah, sorry to interrupt you. Guys, are you all clear about the types of machine learning? सबको सारी machine learning techniques clear हो गई हैं? हाँ भाई. Supervised, unsupervised reinforcement properly. Yes. Okay, I just want to ask a question. Suppose there is a autonomous driving car. Which kind of machine learning model it will use? Which kind of machine learning technique it will use? Supervised. Reinforced. Supervised, bro. Supervised. Okay. Okay, I am going to ask one by one. All right. Reinforced. Okay, reinforcement. Akshi, which kind of machine learning model it will use? No response. Okay. Abhishek, what do you think? Supervised, unsupervised reinforcement. Ayush. Ayushi. Divya. Guys, please be active. Pavan. Unsupervised, sir. Okay, unsupervised. Thank you for the response. Harsh. I think supervised. Supervised. Okay. Supervised learning. All right, supervised. Kunal. Kunal, what do you think? Mehul. Prajwal. Rohan. Supervised, bro. Okay, thank you. Satya. Satyam. I think it's supervised, sir. Okay, supervised. Tanishka. Ujjwal. Self-supervised. Okay. Bro, I have told about only 3 now. Supervised and supervised. Supervised, unsupervised, or reinforcement. Ujjwal. Okay, everyone, just to clear, see, I have told you about 3 types of machine learning. Supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So, like everyone, you have heard of, this thing, Tesla. Sushant, Okay. वही वाला example से No बात. answer. Okay. No, I so think now- it is not specific, right? Okay. No, yeah. So let me, like in the morning only, I got to know about this example, which is very good to explain. See, okay, so let's think that this is your car. Okay, this is your Tesla car. Okay. First of all, मैंने like supervise में क्या बताया था कि in which we have to classify the answers. Like if you have given a mail, then you have a classify that it's a spam or not spam. Okay. Or if it's a regression problem, like based on data sets, it's make the following predictions. ये सब चीजें किसमें आती हैं? सुपरवाइज लर्निंग में आती हैं कि आपको कुछ चीजें दी हैं, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो फॉलोइंग आउटपुट. ठीक है. नेक्स्ट चीज आपकी आती है क्या? लाइक अनसुपरवाइज लर्निंग. उसमें क्या होता है? आपके पास लेबल नहीं होता, बट आपके पास क्या होता है? क्या कहते, आपके पास डेटा सेट होता है और आपको उसको बेस्ड ऑन सर्टेन प्रीवियस कुछ डेटा के बाद आप क्लस्टर बनाते हो चीजों का. ठीक है. और थर्ड मैंने क्या बताया था आपको? रीइंफोर्समेंट लर्निंग. आप रीइंफोर्समेंट को बार भूल जा रहे हो. रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज समथिंग बेसिकली इन विच वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. ओके. सो बेसिकली ऑटोनोमस कार्स जो वर्क कैसे करती हैं? बेसिकली दे वर्क लाइक
if they're working on a like मान लो this is a path, okay, and if अब हमारा कार जो है like it's moving in this direction, अगर यहाँ पर एक कुछ वो आ गया पेबल टाइप या कुछ रॉक आ गया, ओके, सो लाइक वो फर्स्ट टाइम अगर यहाँ से जा रहा है कार, वो उसे टकराएगा, उससे कुछ डैमेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो कार फिर से अगर उसको इसी पाथ पे, वो डेटा लेकिन ये स्टोर कर लेगा कि हाँ इस पाथ पे जाने से मेरे को यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। बट इफ द सेम नेक्स्ट टाइम जब वो कार यहाँ से जाएगा, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, इट वोंट गो इन दिस पाथ। वो अब बोले कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरे को यहाँ से कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ डिफरेंट पार्ट फॉलो करेगा, ठीक है। वो अब कुछ डिफरेंट पार्ट फॉलो करेगा और ताकि अपने पाथ पर लाइक वो हो जा रहा है और लास्ट पे डिस्टेंशन पहुंच जा रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, वो बेसिकली मिस्टेक से लर्न कर रहा है ना। सो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक किस टाइप का एल्गोरिथम होता है, मतलब तो कौन सा आ गया इस पे, तो बेसिकली ऑटोनोमस कार बेसिकली फॉलो द रीइंफोर्समेंट लर्निंग थिंग, ओके, क्लियर हुआ गाइस? Okay, sir. ओके, ठीक है। और लाइक अभी सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ पहले आपको। लाइक बस ये वाला इमेज देखो, क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड का पार्ट है। अनसुपरवाइज्ड में दो चीजें आती हैं, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे वी हैव गिवन जस्ट द रॉ डेटा, मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया कि ये एप्पल है, ये पेयर है या फिर स्ट्रॉबेरी है। आई हैव जस्ट गिवन द रॉ डेटा लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दिस इज आवर मॉडल, वी हैव गिवन दिस डेटा टू आवर मॉडल एंड जस्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आवर एल्गोरिथम हैव मेक द क्लस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर? स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसने क्लस्टर बना दिया है ना, कि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। लेकिन इसने किसी को भी लेबल नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि एप्पल है क्या है। आई हैव जस्ट गिवन द फ्रूट्स, ठीक है। तो देखो ये जब इस टाइप की चीजें हो ना कि वी हैवंट गिवन द डेटा, वी हैव गिवन लेबल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा सेट। ये क्या, ये कौन सा डेटा सेट है, कौन सा डेटा सेट है ये गाइस? लेबल्ड है या अनलेबल्ड है? Unlabeled. अनलेबल्ड, बिकॉज वी हैवंट गिवन द लेबल। बट वही अगर मैं लिख देता कि ये रेड वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एप्पल हैं, येलो वाले जो पेयर हैं और ये जो ऐसे वाले हैं ये स्ट्रॉबेरीज हैं, तो यहाँ पर वो हमारा ये अगर हम उसको एक एप्पल देते तो हमारा मॉडल बताता कि हाँ ये एप्पल है सारे, ये सारे पेयर हैं, ये सारे स्ट्रॉबेरी हैं। तब वो क्या हो जाता, तब वो एक लेबल डेटा सेट हो जाता और दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। बेसिकली दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनदर टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज एसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन का आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि सब फ्लिपकार्ट अमेजोन सारे यूज करते हो, है ना। तो लाइक मान लो आपने एक अमेजोन पे कोई टी शर्ट खरीदी, लाइक आपने परचेज किया, तो आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन आता है कस्टमर्स हैव आल्सो बॉट दिस, है ना, आता है ऐसा ऑप्शन। Yes, sir. लाइक तो उसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जिन बंदों ने वो टी शर्ट खरीदी रेड कलर की, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने एक ब्लू कलर की जीन्स भी खरीदी है, ठीक है। तो वो होता है एसोसिएशन, कि अगर बंदे ने एक चीज खरीदी है तो बंदे ने दूसरी चीज भी खरीदा है, तो वो मशीन सजेस्ट कर रहा है आपको कि देखो इस की इफ यू हैव बाइंग दिस, इफ यू आर बाइंग दिस टी शर्ट, देन यू शुड आल्सो ट्राई टू कंसीडर दिस जीन्स व्हिच कम्स लाइक इट विल गुड, द कॉम्बिनेशन विल लुक गुड, ओके। आप किसी सुपरमार्केट में जाओगे, आपने एक मिल्क खरीदा, ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा, ठीक है, किसी कस्टमर 1 ने। फिर कोई कस्टमर 2 आया, उसने मिल्क खरीदा, ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा, सीरियल भी खरीदे उसने। ये कस्टमर 3 आया, उसने मिल्क, ब्रेड और बटर खरीदा, ठीक है। अब तो ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब कोई एन कस्टमर है वो उसने शुगर एक्स खरीदे, ठीक है। तो अब जब कोई नेक्स्ट कस्टमर आएगा, फिर रैंडम आप कस्टमर जाओगे और अगर ये सारी चीजें मशीन में स्टोर होता है कि कस्टमर ने ये चीज खरीदी, कस्टमर 2 ने ये चीज खरीदी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा फर्स्ट थिंग कि क्या आपको मिल्क लेना है या ब्रेड लेना है, बटर लेना है। तो आपको ऑलरेडी अगर वही लेना चाहते हो तो आपका टाइम ही बचेगा कि हाँ मेरे को तो ये लेना था, चलो स्टार्टिंग में मेरे को बता दिया कि ये चीज़ कहाँ पे है और मैंने वो परचेज कर ली, मेरे को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा उस चीज़ को। तो ये चीज़ होती है एसोसिएशन, कि बेस्ड ऑन सर्टेन लाइक अगर इंसान ने ये खरीदा तो वो ये भी खरीदेगा, अगर इसने ये किया तो वो ये भी करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एसोसिएशन।
तो क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं इसके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। और सुपरवाइज के कौन से दो पार्ट्स होते हैं? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का क्या कंडीशन है? जैसे ये जो मेल था, इसमें इसका दो ही आंसर हो सकता है मेल का, या तो यस या नो, स्पैम है या स्पैम नहीं है। जब भी इस टाइप कंडीशन हो ना कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, लाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन जो कहते हैं इसे, कि आपके ऑप्शन मतलब आपके पास ऑप्शन हो कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा इसका आंसर, तब वो होता है क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम क्लासिफाई कर रहे हैं चीजों को। और अगर रिग्रेशन में क्या होता है कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंटिन्यूअस डेटा सेट वी मेक द प्रेडिक्शन। लाइक अगर ग्राफिकल कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स आपके रिग्रेशन में ही आते हैं, ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में ही आते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो वही मैंने किया, जैसे कि लाइक आपको यहाँ बहुत सारे डेटा सेट दे दिए। क्लस्टरिंग क्या करेगा? डिफरेंट कलर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स को वो कर देगा, क्लस्टर बना देगा धीरे धीरे। एसोसिएशन क्या था? इफ द कस्टमर परचेज आइटम 1 देन इट रिकमेंड्स द कस्टमर टू परचेज आइटम 2 आल्सो, ठीक है। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लाइक यहाँ तक क्लियर हुआ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, क्योंकि बिकॉज टिल नाउ वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ वी हैव गोना फ्रेम सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट एंड वी आर गोना फिगर इट आउट how that problem is going to solve and how which model we are going to make on that problem. Okay, so problem framing क्या होता है? Okay, problem framing basically नाम से पता चल रहा है, we are going to frame a problem, ठीक है। framing क्या होता है? basically framing involve करता है it involves all the explaining and describing the context of the problem, like whatever we have a problem, like जो email detector था, spam detector था, वो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि we have to detect whether a mail is a spam or not, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम फ्रेमिंग इज ऑल्सो लाइक अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज अगर आपने प्रॉब्लम फ्रेमिंग सही से नहीं की सो यू वोंट अंडरस्टैंड विच मॉडल टू यूज, विच टाइप ऑफ लर्निंग टू यूज। अगर आपका कोई मॉडल अनसुपरवाइज लर्निंग का मॉडल है और आपने उसको सुपरवाइज लर्निंग लगा दिया तो यू नो थिंग्स मेसअप हो जाएंगे और आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। ओके, सो सक्सेसफुल फ्रेमिंग पुट्स यू इन अ फेवरेबल पोजीशन टू डायरेक्ट द डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इंप्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल सॉल्यूशन, ठीक है। सो हाउ प्रॉब्लम इज फ्रेम्ड इन मशीन लर्निंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग क्या होती है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन करना होता है। मैं सिंपल सबसे बेसिक जो स्पैम डिटेक्शन का प्रॉब्लम होता है उसी को लेके बार बार आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो अब मशीन को कैसे पता चलेगा कोई ईमेल स्पैम है या नहीं है ना? कुछ कीवर्ड्स होंगे जो आपने दिए होंगे कि अगर मेल में वो कीवर्ड्स दिए हुए हैं तो मतलब इन सब चीज़ों को वो क्या बोलता है, स्पैम होता है बेसिकली। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम फ्रेम करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, हम लोग डेटा सेट क्रिएट करते हैं। अपना डेटा सेट मेन थिंग होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी कैन गैदर, जिसको हम मशीन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, आप अपने मॉडल को जितनी ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करोगे, जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड करोगे, इट वुड बी ईजी फॉर द मशीन टू मेक पैटर्न्स और मेक द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। बिकॉज आप अपने डेटा को लाइक अपने कोई भी डेटा इनपुट दे दिया मशीन को, तो अगर कोई छोटा सा डेटा सेट रहेगा, इफ लाइक मान लो इफ देयर इज अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ओके, और लाइक मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है एंड वी हैव गिवन द मार्क्स ऑफ ओनली 10 स्टूडेंट्स टू द मशीन, और हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि अपने बस 10 बच्चों के मार्क्स दिए मशीन में स्टोर किए। अब हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई हमने इस बच्चे का नाम दे दिया जिसका डेटा दे दिया था, और चेक कर रहे हैं कि बताओ हमें कि इस बच्चे का मार्क्स क्या है। अब 10 स्टूडेंट्स से हमें डेटा दिया 60 बच्चों में से, तो समझ रहे हो लाइक मशीन के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। मतलब वो आउटपुट तो देगा लेकिन वो एक्यूरेट आउटपुट होगा इसकी गारंटी नहीं है। और वही अगर 60 बच्चों के स्टूडेंट में आप 50 बच्चों का डेटा उसको दे रहे हो तो बेस्ड ऑन दैट डेटा मशीन हाँ पता लगा लेगा, हाँ यार 50 बच्चों का दिया है, तो जो 10 बच्चे हैं, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल 100% एक्यूरेसी नहीं देता। टिल नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव 100% एक्यूरेसी, ये चीज याद रखना। सो वी जस्ट ट्राई टू रीच टुवर्ड्स 100% एक्यूरेसी।
ठीक है, तो लाइक अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि 50 स्टूडेंट्स का हमने डेटा दे दिया, अब उसके बेस अब मैं किसी स्टूडेंट का इनपुट दूंगा तो उस पर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो होगा वो प्रेडिक्ट कर सकता है आउटपुट जो बेटर होगा प्रीवियस मॉडल से। सो डेटा सेट क्रिएट करना और अपने मशीन को प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वी हैव गिवन अ डेटा सेट, हमारा मशीन क्या करेगा, उस डेटा सेट को पहले अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करेगा। उसके लिए भी वेरियस प्रोसेस होते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग एक टर्म होता है, ठीक है, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अपने मशीन अपने मॉडल के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को एनालाइज करता है, स्टोर करता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा और प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। देन व्हाट वी डू, वी ट्रेन द मॉडल बेस्ड ऑन द डेटा सेट। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक जो डेटा सेट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। और वैलिडेशन सेट क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड्स मतलब आगे के लेक्चर्स में सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेट बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास जो मैंने बताया 60 स्टूडेंट्स का जो मैंने डेटा दिया था और मैंने बोला कि उसमें मैंने 50 का डाल दिया, तो जो 50 था वो क्या हो गया, हमारा ट्रेन डेटा हो गया कि उस 50 डेटा सेट पे हम अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, और जो बचे हुए 10 डेटा सेट हैं उस पर हम अपनी मशीन को टेस्ट करेंगे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, और ट्रेन उसके भी बहुत सारे टेस्टिंग के प्रोसेस होते हैं। के फोल्ड होता है जिसमें हम लोग लाइक डेटा को शफल कर करके बार बार ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट स्प्लिट करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी मेक द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मॉडल आवर मॉडल इज रेडी एंड वी कैन मेक द प्रेडिक्शंस। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया कि मशीन लर्निंग मॉडल वर्क कैसे करता है, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे मॉडल ट्रेन होता है, कैसे वो प्रेडिक्शन परफॉर्म करता है। Yes, गाइस क्लियर है? yes, प्रॉब्लम फ्रेमिंग इन मशीन लर्निंग प्रॉपरली। अगर बोरिंग जा रहा है सेशन तो प्लीज बोलो, सो वी कैन वाइंड अप इट सून। हाँ ये भी है, प्लीज गिव योर फीडबैक। ठीक है, क्योंकि वी आर जस्ट हियर फॉर यू गाइस। तो अगर आप लोगों को बोरिंग जा रहा है सेशन या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बी फ्रैंक, फैकल्टी यहाँ पे कोई नहीं है, वी आर हियर टू लर्न। सो बोलो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। अभी तक जो भी इसमें बताया गया टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और उसके बाद डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स लाइक क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन, क्लियर हुआ सब? हाँ भाई। Yes, sir. ओके yes. ओके ओके, सो अब जो मैंने कहा था कि डेटा सेट गुड लेना है हमें, तो लाइक हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस मॉडल दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गुड फॉर मशीन लर्निंग। तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा होना चाहिए जो हमारा वो हाई एक्यूरेसी होना चाहिए। अब अगर हमारा डेटा ही हम मशीन को गलत प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो करेक्ट प्रेडिक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। सो हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन अ डेटा सेट। ठीक है, जो डेटा सेट का वेरिएशन होना चाहिए वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे का मार्क्स 0 एक बच्चे का मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 है और बस यही दोनों ने डेटा दिया तो उसके बेस पे प्रेडिक्शन कैसे करेगा थर्ड बच्चे का। तो हमारा डेटा सेट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। जो भी हम आउटपुट दे रहे हैं वट एवर द आउटपुट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ द इनपुट्स। लाइक वट एवर द आउटपुट्स हम जो परफॉर्म ले रहे हैं, जो आउटपुट दे रहा है हमारा मॉडल, वो जो हमने इनपुट दिया उसके बेस पर ही होना चाहिए, किसी थर्ड फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली उसके बाद जो डेटा जो मिला हमें उसको जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो शुड बी क्वांटिफाइड होना चाहिए। क्वांटिफाई मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा आ गया, एक छोटा जो हमें अंडरस्टैंडेबल हो मशीन को भी और हमारे लिए भी। तो ये सब कुछ कंडीशंस होते हैं गुड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट लाइक विच कंट्री विल वॉन द वॉर। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। अब मान लो कि इफ वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द वॉर by various data like political climate, technology each side has, spending on military etc. So अगर इन चीजों फैक्टर्स को हम कंसीडर करके आउटपुट बनाने की कोशिश करेंगे तो लाइक हाँ हमारे पास चांसेस आता है कि हाँ हम एक लाइक एक्यूरेट आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कंट्री जीतेगी। लाइक अभी जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, तो बेस्ड ऑन डेटा लाइक मैनी मॉडल्स हैव प्रेडिक्टेड दैट दिस कंट्री विल विन द वॉर और दिस विल विन द वॉर बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वही मान लो इफ there is a horse race, ठीक है, अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि which horse will win the race। और अगर हम ये आइडिया ले रहे हैं हॉर्स की आई कलर एज अ फीचर ले रहे हैं हम लोग, तो लाइक सुनने में absurd लग रहा है कि हॉर्स का आई कलर
क्या फैक्टर डिफाइन करेगा कि हॉर्स जीतेगा या नहीं जीतेगा? सो सिलेक्शन ऑफ अ फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक बेकार फीचर लोगे तो आपका मॉडल सही ऑटो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा. बट इफ यू टेक अ गुड फीचर, important features, then it will make an accurate prediction of the problem. Okay, so selecting a good feature is very important for a good machine learning model. तो ये समझ में आया कि फीचर कैसे सिलेक्ट करते हैं? शांत, फीचर हमारा टारगेट वेरिएबल होता है. फीचर हमारा टारगेट वेरिएबल कह सकते हो. बेसिकली फीचर जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे वो हमारे वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जिसपे हमारा मॉडल बेस्ड होता है, जिसपे हमारा डेटा सेट जो होता है वो बेस्ड होता है. हम उन चीजों के डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हाँ, कह सकते हो कि हमारा टारगेट जो वेरिएबल है वो एक पर्टिकुलर फीचर, अगर जहाँ पे हॉर्स आई कलर है तो एक फीचर है, और अगर सिर्फ इसी को तुम टारगेट वेरिएबल ले रहे हो, देन बेस्ड ऑन दिस अगर आप मॉडल क्रिएट करोगे और ऑटो प्रेडिक्ट करोगे तो वन से हाँ ये सॉरी हाँ. तो इफ यू लाइक आपने जो बोला भी फीचर टारगेट वेरिएबल, सो इफ द हॉर्स आई कलर इज अ टारगेट वेरिएबल, तो ऑटोमेटिकली आपको एज ह्यूमन आप खुद समझ रहे हो कि इट वोंट मेक द परफेक्ट आउटपुट. ठीक है, तो हाँ कह सकते हो कि फीचर एज अ टारगेट वेरिएबल. ओके ओके. And also you mentioned data high accuracy का होना चाहिए. So high accuracy means basically उसमें null values ना हो, data clean हो. हाँ, वो सारी कंडीशंस हैं. बट मेनली जो मेरा फोकस था कि अब मैंने ये कहा कि अगर आप जो हमारे डेटा सेट है, लाइक जो मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में बताया था, तो अगर आप जो एक्यूरेट डेटा दे रहे हो कि हाँ इस बंदे के इतने मार्क्स आए इस सब्जेक्ट में, तो अगर आप वो एक्यूरेट डेटा दे रहे हो, सही डेटा दे रहे हो, तो हाँ मतलब मशीन उस पर करेगा ना कि हाँ वो करेक्ट डेटा है. अब अगर आप डेटा इसको फॉल्स डेटा दे रहे हो मशीन को, हमारे इन ट्रेनिंग में इसको गलत डेटा से ट्रेन कर रहे हो, तो वो करेक्ट आउटपुट तो नहीं दे सकता. तो ये मेरा मतलब था. और हाँ बिल्कुल नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए डेटा सेट में, हमारे कांस्टेंट रहना चाहिए. ये सारे जो है हमारे डेटा एक्यूरेसी में आ जाते हैं. ठीक. ओके, एनीवन एल्स एनी डाउट? सर अगर टारगेट वेरिएबल हमारा लाइक बाइनरी फॉर्म में हुआ तो फिर हम उसको फीचर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सॉरी, टारगेट वैल्यूज अगर सारी बाइनरी फॉर्मेट में हुई तो हम उसको फीचर वेरिएबल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगर हमारे जो टारगेट वेरिएबल्स है, फीचर्स है, वो बाइनरी फॉर्म में है तो हम उसको फीचर्स बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो. आपके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे मैं अभी क्लियर डिक्लेरेशन दूंगा तो उस पर मैं आपको 2 इनपुट दिखाऊंगा. देखिए, ठीक है, तो बेसिकली वो दोनों इनपुट जो होंगे वो आपके क्या होंगे, टारगेट वेरिएबल्स होंगे. दोनों के बेस पे आप आउटपुट प्रिंट करने वाले हो. तो वो जो होती है, आप मल्टी वेरिएबल भी हो सकते हैं कि आप बहुत सारे इनपुट्स दे रहे हो, उनके बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रिंट कर रहा है. लाइक एक पॉइंट के आप 2 इनपुट्स दे रहे हो एक पॉइंट के लिए, तो उस पे बेसिस पे आउटपुट प्रिंट कर रहा है. तो हाँ, बाइनरी डेटा से भी आपके टारगेट वेरिएबल में आ सकते हैं. ओके, ओके, इज इट क्लियर? ओके. नाउ अब मैं आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग में 2 टर्म होते हैं, प्रेडिक्शंस एंड डिसीजंस. ठीक है, दोनों बहुत डिफरेंट चीज होती है. डिसीजन बेसिकली मींस दैट माय प्रोडक्ट शुड टेक एक्शन ऑन द आउटपुट ऑफ द मॉडल. ठीक है, बेसिकली प्रेडिक्शन और डिसीजन जैसे होते हैं, दोनों क्लोजली अलाइंड होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही चीज हो. ठीक है, लाइक अगर जैसे कि आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब आपको रिकमेंडेशन आते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप ये देखो, तो बेसिकली वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए. ठीक है, और डिसीजन क्या हुआ कि वो आपको लाइक कह रहा है कि नहीं आप नेक्स्ट वीडियो वही देखो. आपको देखो 2 चीजें होती हैं, आप यूट्यूब प्ले कर रहे हो तो उसमें एक होता है नेक्स्ट ऑप्शन होता है. आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो प्ले कर देता है जो उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ नेक्स्ट वीडियो यही होगा. प्रेडिक्शन क्या होता है, वो आपको रिकमेंड करता है कि आउट ऑफ दीज वीडियोस व्हिच वीडियो यू वांट टू सी द नेक्स्ट. ठीक है, तो ये चीजें होती हैं प्रेडिक्शन और डिसीजन. ठीक है, ओके, इज इट क्लियर व्हाट इज प्रेडिक्शन एंड व्हाट इज डिसीजन? Yes. Okay. Now everything we cannot handle with machine learning. Okay, there are some hard machine learning problems.
तो अब मैं कुछ वो डिस्कस करूंगा कि लाइक कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो जिन्हें हम मशीन लर्निंग से टैकल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो मैंने एक्यूरेसी ऑफ डेटा सेट बोली थी, चाहे जो मल्टीवेरिएट्स यूजुअल ने कहा था वो, ठीक है, वो कैसे टैकल करते हैं मशीन लर्निंग में कि जिससे हमारे को प्रॉब्लम होती है मॉडल फ्रेम करने में। ओके, एनीवन वांट टू से समथिंग? नो शशांक, कैरी ऑन। ठीक है, तो जैसे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो क्लस्टरिंग फॉर्म करते हैं, तो ओके हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स को तो वो कर देते हैं, है ना, क्लस्टर कर देते हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम लेबल नहीं कर पाते डेटा सेट को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम लेबल नहीं कर पाते डेटा सेट को, तो हमारे पास आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई लाइक हमने कोई लेबल दिया ही नहीं, तो हम कैसे कैरेक्टराइज करें कि ये डेटा ये है या फिर ये डेटा ये है। तो एक क्लस्टरिंग में प्रॉब्लम आती है। एक तब आती है कि लाइक हमने डेटा सेट्स को परफॉर्म किया, उसका ग्राफ प्लॉट किया, और कुछ डेटा सेट्स जो है लाइक कुछ एक्सेप्शंस आ गए जो हमारे डिजायर्ड रेंज के बाहर या ऊपर नीचे हैं। लाइक हमने डिसाइड किया कि अगर इस रेंज के अंदर है तो वो पार्ट क्या है, यस है, लेकिन कुछ डेटा सेट होंगे जो इसके हल्का सा ऊपर नीचे होंगे, बट वो भी हैं, इस पार्ट पे बिलोंग करते हैं, बट वो इधर उधर बिलोंग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में क्या होता है, कुछ डेविएशन आ जाती है, तो इनके लिए एक्सेप्शन हो जाता है। कहते हैं कि हाँ ओके, एक दो केस एक्सेप्शन हो गए, इसके लिए हमारा जो आउटपुट था वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया। ठीक है, एक और आता है कॉजेशन, द एक्शन ऑफ कॉजिंग समथिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग बेसिकली होता है वो दो चीजों के बीच में कोरिलेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आपको दो चीजें हो सकती हैं, आइसक्रीम खाने का मन करेगा आपको, ठीक है, कुछ ठंडा या कुछ खाने का, सनबर्न भी होते हैं, ठीक है, चलो, लेकिन दोनों का रीजन यही है, कॉज दोनों का यही है कि गर्मी की वजह से ऐसे खाने का मन कर रहा है, बट इन दोनों के बीच में कुछ कोरिलेशन निकालना, वो मशीन लर्निंग के लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या होती है, एक और चीज जो आखिरी में होती है वो होती है कि अगर मेरे पास डेटा है ही नहीं अवेलेबल, अब मैं किसी क्लास में को पर्टिकुलर बोल दिया गया कि इस क्लास के बच्चों को कोई मार्क्स प्रेडिक्ट करो या फिर कुछ प्रेडिक्ट करो, और लेकिन मेरे पास उस क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो अगर मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है तो मैं तो कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इस बारे में। सो इफ नो डेटा इज अवेलेबल देन यू कैन नॉट मेक अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस इन मशीन लर्निंग, एंड वर्क चल रहा है उसके ऊपर कैसे हम चीज को टैकल कर सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस से। Okay, so that was all for like what are the basics of machine learning. I think it's clear. If anyone has a doubt, they can ask. I have a doubt basically. When you say कि जो last वाला example you did, there is no correlation between the ice cream and sunburn, right? So, the main thing is in machine learning, the lesser the correlation is, the better the model building is, right? You cannot say that, but because if you are given a data set and if the data points are like related with each other, तो अगर जैसे आपने कहा ना कि you have given that if there is a null value in the data set, है ना, and but null value दिया हुआ है किस data set में, तो उस नल वैल्यू को फुलफिल करने के लिए कुछ तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना प्रेडिक्शन करने के लिए, तो वो बेस्ड ऑन प्रीवियस कुछ डेटा सेट उसी पॉइंट के लिए कुछ और डेटा पॉइंट्स जो होंगे उसकी मदद से उस नल वैल्यू को फिल करेगा, कुछ और पुट करेगा उस जगह पे। तो बेसिकली कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, बट इसे इस केस में मैंने कहा, इस केस में आइसक्रीम और सनबर्न में तो कोई कोरिलेशन है नहीं, तो वो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज का कोरिलेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो कोरिलेशन होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इस केस में कोई कोरिलेशन बैठ नहीं रहा है, लेकिन कॉज दोनों सनबर्न की वजह से ही है। तो दैट्स मैं कह रहा हूँ ये एक प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग की जिसको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केस ऐसे आते हैं when we are unable to find the correlation between the like two things। ठीक है, तो ये मैं नहीं कोरिलेशन इसलिए कह रहा हूँ, कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है। Basically, correlation की value varies from -1 to +1, right? Higher the correlation is, I think उतना mess up नहीं करते मॉडल को, तो we'll take 0.7 max value। देखो मैक्स वैल्यू क्या लेते हैं उसके लिए, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है, वो एक आपको रिलेशन बताता है कि दो थिंग्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। ओके, सो अगर ग्राफ आप ड्रॉ करोगे कोरिलेशन का या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन होते हैं,
ठीक है। अगर मान लो कोई 2 थिंग्स हैं, उसमें आपने कोरिलेशन फाइंड करनी है अपने डेटा सेट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेसिकली, अगर आपके पास 2, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नल डेटा पॉइंट को, आप नल डेटा पॉइंट को रिमूव कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन ओनली, बेस्ड ऑन सम other data points. We are basically just correlating that data point with that null value, and based on that we are fulfilling the value of the null data. So basically correlation is important, very important. So जितना high होगा वो उतना अच्छा होगा मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि वो की फीचर्स जो होंगे या फिर जो मॉडल फिटिंग में जो यूज होता है सिग्निफिकेंट डैमेज, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। Okay. Okay, anyone else has any doubt? All classes will be held online or offline? Okay, We are Harshit, still on can you? it. We are still on it. We will, revert back to this soon. You will receive an email regarding the same, but probably we have already rolled out a poll, and I am also going to paste the link on this meet also. You all can give your suggestions, and we will go with the majority. Okay. Guys, so till now, Sushant has explained very well about the machine learning techniques, what are the different types of machine learning, and what are the problems which we are facing in the machine learning domain. So I just want to know, is all of these things are clear to you all? Yes. Okay, perfect. Yes, sir. Okay, thank you so much Yes, for your sir. feedback, Ikra, Rohan, and Harshpal. So, guys, do you want a hands-on session on linear regression? Yes. I Yes, literally want. definitely. Pardon? Yes, sir. Yes, I literally want. Okay. Okay. गॉड। ठीक है, तो पहले बता दूं, मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं क्लियर डेटा ले रहा हूँ जिसमें बस 2 इनपुट हैं। ठीक है, ये मेरे लाइक टोटल मेरे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, 97 डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास, जिसमें 2 इनपुट्स हैं, x1 और x2। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट, और ये हर अलग अलग इनपुट्स के लिए है। ठीक है, अब इस बेसिकली मेरे पास ये डेटा सेट है और इसको मैं यूज करूंगा एक मॉडल प्रेडिक्ट बनाने में। ठीक है, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल का बेसिकली मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, जिसमें लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि आपके पास एक सिंपली लाइक आपके पास एक ग्राफ है और ओके, ठीक है, आपके पास मतलब आपके पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं और बेस्ड ऑन दोस डेटा पॉइंट्स मैंने कॉमन एक लाइन बेस्ट फिट फाइंड किया कि ये जो लाइन है बेसिकली इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में जो एक्यूरेसी जो वो है एरर है मिनिमम होना चाहिए, और सारे पॉइंट्स का मतलब जितने भी पॉइंट डेटा पॉइंट्स हैं उसके बीच में जो बेस्ट फिट फाइंड किया हम लोगों ने वो होना चाहिए मिनिमम, सो दैट अगर मैं कुछ नया इनपुट दे रहा हूँ तो बेस्ड ऑन दैट इनपुट वो आपको बता देगा कि हाँ ये वैल्यू है, ये आपका फॉलोइंग आउटपुट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क करता है? मैं ब्रीफ दे रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन का आपको, मैं इसको और अच्छे से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट अनदर वे। तो होगा क्या, जो सुशांत ने अभी आपको एक्सेल सीट दिखाया हुआ है उसके थ्रू सारे के सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जैसे कि अभी सुशांत प्लॉट कर रहा है ये छोटे छोटे पॉइंट्स। देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन कवरिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। एम आई करेक्ट सुशांत? yes. Yeah, so we will try to draw a straight line when in the case of linear regression covering most of the points, minimizing the errors. So this is what in layman words we can say the linear regression works. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन नाम से लीनियर है, ये बेसिकली हम एक बेस्ट फिट फाइंड करेंगे अपने मॉडल में। अरे सिंपली मैथ्स का y = mx + c की तरह है एग्जैक्टली, linear हमने regression। हाँ सिंपली मतलब जो इक्वेशन होती है ना y = mx + c, तो लीनियर तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं 2-3 चीजें होती हैं। इस चीज को बताने से पहले मैं क्लियर करना चाहूँ, हम लोग मशीन लर्निंग में यूज करने वाले हैं एक लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए कि पहले ये चीज समझो, लीनियर रिग्रेशन जो होता है ना वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन है वो। ठीक है, यहाँ पे y = mx + c क्या होता है, यहाँ पे y हमारा लाइक जो आउटपुट है वो है, m क्या होता है स्लोप होता है, और c क्या होता है इंटरसेप्ट होता है। तो मशीन लर्निंग में हम लोग y = mx + c नहीं लिखते हैं, we basically write it as this thing. not
we basically write it as, let me change the color, as hx is equal to theta naught plus theta 1x. ठीक है, सेम चीज है, y को मैंने h से डिनोट किया, m को मैंने थीटा 1 से डिनोट किया और c को थीटा नॉट से. ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा नॉट, यहाँ पर जो ये जो m और c होते थे, ये क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे. सिमिलरली यहाँ पे जो थीटा नॉट और थीटा 1 होंगे कांस्टेंट्स होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स. ठीक है, what we call it as parameters because based on these parameters our model is basically working. और मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमें क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हमने बस दो पॉइंट्स को कंपेयर किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी और बोला कि हाँ यार ये यही हमारा परफेक्ट मॉडल होगा. ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सो हम एक लूप चलाएंगे और सारे डेटा पॉइंट से कंपेयर करेंगे और क्या करते जाएंगे, इन थीटा नॉट को और थीटा 1 को, जो पैरामीटर्स हैं, इनको हर वैल्यू पे क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे. ठीक है, और अपडेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक और चीज कैलकुलेट करेंगे, लॉस. ठीक है, लॉस क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एरर होता है, हमारा y1 माइनस y. बेसिकली y1 क्या है, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, सॉरी जो हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ से थीटा hx, और जो हमें आउटपुट चाहिए, मान लो हमें आउटपुट चाहिए 0.7, बट हमारे मॉडल से हमारा आउटपुट आ रहा है 0.5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा, 0.2. तो यानी जो हमारा एरर है, एरर कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है, उसको हम लॉस से डिनोट करते हैं कि दैट इज कॉल्ड लॉस. ठीक है, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट करते हैं कि हाउ वी, यहाँ पे एक और टर्म यूज होगा, कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं कभी कोड लिखूंगा उसमें इनका यूज आएगा, तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि होते क्या हैं. इसको हम जे से डिनोट करते हैं बेसिकली. ठीक है, इसका एक लंबा सा फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड समेशन ऑफ hx माइनस y का स्क्वायर. तो उस फॉर्मूला को देख के मेरे को डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है. वो बेसिकली यूज होता है कि जिससे हम लोग जो हमारा है ना ओवरऑल जो एरर है पूरे इसमें, क्योंकि चलिए मान लो ये इतना एरर हुआ फर्स्ट पॉइंट के लिए, है ना, सेकेंड पॉइंट के लिए इतना एरर हुआ, थर्ड पॉइंट के लिए इतना एरर हुआ, तो हम ओवरऑल एरर कैलकुलेट करेंगे कि हाँ इन सारे पॉइंट्स के लिए तो हमने बेस्ट फिट फाइंड कर लिया, इससे ज़्यादा बेस्ट फाइंड नहीं कर सकते इंटीग्रेशन से हम लोग इस मॉलिक्यूलर मॉडल के लिए. तो हम कैलकुलेट करेंगे ना कि हमारा मॉडल जो है कितना % एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे. सो इसलिए हम कॉस्ट फंक्शन इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम ओवरऑल एरर कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो होता है, जो हमने बताया ना, थीटा को अपडेट करेंगे हर आइटरेशन के बाद. तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि उसमें हम ये लिखते हैं कि जो थीटा न्यू है, जो अपडेटेड थीटा होगा, वो क्या होगा बेसिकली, वो ये होगा थीटा ओल्ड माइनस अल्फा, और यहाँ पर एक और टर्म जो आएगा आपका, एक सेकेंड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ थीटा. ठीक है, अल्फा क्या होता है, एक और पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग रेट. लर्निंग रेट बेसिकली हम यूजर खुद डिसाइड करते हैं, और वो हम लोग जितना मिनिमम वैल्यू हो सके वो डिसाइड करते हैं कि जितना हम 0.1 लेते हैं हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं. क्योंकि लर्निंग रेट से को क्या मतलब होता है इसका, अगर मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, ये मेरे पास मॉडल है और ये मैंने कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, तो हम लोग, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है जे, ये हमारा इनपुट वैल्यू है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, हमारा मेन एम होता है, जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो मिनिमम होना चाहिए, कि जो मिनिमम पहुंच जाए. अगर मिनिमम अचीव कर लिया तो बेसिकली ये जो वैल्यू होगी, इस पर जो थीटा नॉट और थीटा की वैल्यू होगी, वो हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर लाइन के लिए. वो लाइन का फिर इक्वेशन आ जाएगा. अब जो अल्फा का कॉन्सेप्ट था, अगर मैं अल्फा को ऐसे 100 लूंगा ना, अगर बोले लूंगा, तो जो हमारा डेविएशन, वो ग्राफ जो ऐसा नहीं बनेगा, वो ऐसा बनेगा, लाइक एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है, अगली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे आता जाएगा. वही अगर मैं थीटा, अगर मैं छोटा लूंगा, अल्फा की वैल्यू 0.1 या 0.001 लूंगा, तो वो जो होगा वो एक्यूरेटली, मतलब इतना जो हमारा पॉइंट है उतना डेविएट नहीं करेगा.
ठीक है, तो ये मतलब था कि मतलब सॉरी कि हम लोग थीटा को बड़ा और छोटा क्यों लेते हैं, व्हाट अल्फा क्या होता है, ये सब क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्मूला मैं कोड में लिख के बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे तो उसको डर जाओगे, थोड़ा अजीब सा होता है। बेसिकली डरने का जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो होता है वो हिडन होता है, लाइब्रेरी यूज करके सब लोग करते हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट। याद करना एज सच बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सुशांत, एम आई करेक्ट? या बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अगर क्योंकि देखना रहता है ना कि scikit जो फंक्शन होता है, अगर आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट sklearn, अगर मैं करता हूँ sklearn is a library which is used for implementing machine learning models। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट उसको भी करके बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपली मैं लिखूंगा अगर कि लीनियर रिग्रेशन एक फंक्शन होता है उसमें, ठीक है, अब मैं सिंपली लिख दूंगा लीनियर रिग्रेशन और उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि हाँ जो मेरी वैल्यूज है कुछ भी फंक्शन में पास कर दूंगा, वो उसके बेसिकली सीधे उसका एरर, उसका कॉस्ट फंक्शन, उसके व्हाटएवर जो सबको अपने आप कैलकुलेट दे देगा। तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको लाइक आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तब आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, बट फॉर अ स्टार्टर, फॉर अ बिगिनर, आप अगर बेस से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो जो मैंने चीज़ें बताई उसको मैं अगर पहले इंप्लीमेंट कर, आपको फर्स्ट थिंग पहले क्या आना चाहिए, आप फाइल को इंपोर्ट कैसे करोगे अपने जुपिटर नोटबुक। मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को यही पसंद है। आप पाईचार्म, VS कोड, आप जो भी आपको पसंद है वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले ये कैसे करते हैं। तो मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट numpy। Yes. What is numpy? Library. I know it's a library. Like basically numpy is It does. Numerical Python. Okay, so basically all the numerical functions which we tackle in Python, we do with the help of numpy. Okay, तो मैंने यहाँ पे पहले numpy फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। अगर आप चाहो तो ये कोड खुद भी रन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ कुछ लाइब्रेरीज होती है जो आपको लाइक अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप सिंपली कर सकते हो pip इंस्टॉल numpy, वो आपका कर लेगा। ठीक है, बट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली इंपोर्ट कर लूंगा उसको। अगर एज ऑफ नाउ इफ यू आर फॉलोइंग सेम विद सुशांत, यू कैन यूज गूगल कोलैब, वहाँ पे सारी लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, तो अब मेरे को जो है ओके, तो मैं numpy से इंपोर्ट करूँगा। और अब जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये CSV फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल है, और पहले मैंने numpy को इंपोर्ट कर लिया। ओके, हो गया। अब मेरे को इस फाइल को अपलोड करना है, तो जब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइल नेम करके, ठीक है, अब मुझे इस वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा अपने डेटा सेट को। अब इस फाइल नेम मैंने वेरिएबल बनाया और इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, इसका मैं लोकेशन डालूंगा इसके अंदर। तो लाइक मेरे पास ये डेटा यहाँ पर था, मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ये मेरा इस फाइल का एड्रेस है, राइट। आई विल जस्ट कॉपी इट, मैं पेस्ट कर दिया इसको। लाइक किसी कुछ सिंटैक्स होते हैं इसको याद रखना, इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, और लास्ट में लिखूंगा फाइल का नेम जो है। समटाइम्स अगर आप स्लैश की ये डायरेक्शन बैक स्लैश यूज़ करोगे तो कुछ एरर देता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन एरर के चांसेस कम रहते हैं इसमें फाइल। और उसके बाद जो मेरा फाइल का नेम था, क्या था, लीनियर रिग्रेशन यूनिवाइट व्हाटएवर बस। कॉपी पेस्ट, और उस फाइल का एक्सटेंशन जो था .csv। ठीक है, मैंने इसमें ये स्टोर कर दिया। ओके, नोवेरा के साथ मेरा फाइल नेम में अब वो डेटा जो है स्टोर हो गया कि हाँ, अब मुझे क्या करना है, उसको इस डेटा को एक रॉ डेटा नाम का मैंने एक और वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं इस डेटा को स्टोर करूँगा। ओके, जिसमें मैं ये फाइल ओपन क्लोज का फंक्शन होता है पाइथन के सिंटैक्स से, मेरा फाइल का नाम, फाइल नेम, ओके, और ये फंक्शन होता है RP, मतलब उसको रीड करना है, ओपन द फाइल एंड रीड द फाइल। ये इस फाइल को रीड करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। ओके, ये भी हो गया, अच्छे से हो गया। अब मैं लास्ट एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें लिखूंगा डेटा, जिसमें डेटा में स्टोर करूँगा अच्छे से अपना। तो numpy में एक एक्सेल फाइल को स्टोर करने का फंक्शन होता है np.loadText। ठीक है, और इसमें मैं लिखूंगा सीधा जो हमारा फाइल का नेम है, जो क्या है, रॉ डेटा, फाइल का नेम जो यहाँ पे हमने डेटा स्टोर किया, मैं रॉ डेटा स्टोर किया है, और डेलीमीटर।
मतलब जो हमारा फंक्शन है वो जो जिसमें से 2 वेरिएबल्स हैं हमारे एक्सेल शीट में, तो इन दोनों को मैं सेपरेट कैसे कर रहा हूँ, तो इसको डेलीमीटर से कहते हैं उसको, और डेलीमीटर हमारा क्या है यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। मैं रन कर दिया। ओके क्या कर पड़े, ओके स्पेलिंग का ध्यान रखना, LMIT होता है, ठीक है। अब जो है मेरा डेटा फाइनली स्टोर हो गया है हमारे इसमें, तो अगर मैं अपने डेटा को प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो जैसे देखा आपने डेटा हमारा स्टोर हो चुका है और उसने डेटा को प्रिंट कर दिया जो हमारा एक्सेल शीट में डेटा था। ओके अब जैसे मैंने ये करके दिखाया आपको, उसमें कोई डाउट आया कि मैंने ये डेटा कैसे पहले अपलोड किया? सिंटैक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, इसमें pd.read.csv भी कर सकते हैं ना? हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना, वो ये से मैंने numpy से किया, ठीक है। अगर अपने से pd के लिए कहा, तो अगर मैं फिर पांडा से करना चाहता हूँ, क्योंकि पांडा से भी वो डेटा को हैंडल करने के लिए होता है, तो ठीक है मैं पांडा से करके दिखाता हूँ एज pd। अब उसमें मैं एक और वेरिएबल डेटा बन करके बना देता हूँ, वो एक्चुअली ज़्यादा ईजी होता है, उसमें कोई इतने वैल्यूज बनाने की जरूरत ही पड़ेंगे। रीड CSV और जो मेरा फाइल का नेम था ब्रैकेट में, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल ही पास कर देता। चलिए ये भी सही था, ठीक है। और सिंपली मैं अगर करूँगा तो यहाँ से भी वही चीज़ होगी, और सॉरी प्रिंटर में उसी नहीं है डेटा वन, देखा ये पांडा से मैंने स्टोर कर दिया, तो उसमें पूरा डेटा शो नहीं हो रहा, लेकिन वो 96 रोज एंड 2 कॉलम्स, ओके। तो ये मैंने पांडा से डेटा इंपोर्ट किया और ये मैंने numpy से इंपोर्ट किया डेटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है गाइस? ओके तो फिलहाल मैं इस पॉइंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ सेट्स को, क्योंकि मैं numpy फोकस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने numpy से डेटा स्टोर कर दिया। नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो पाइथन में जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? matplotlib.pyplot, ठीक है। एक लाइब्रेरी होती है matplotlib.pyplot, ठीक है। SPLT कर देता हूँ, बराबर खोल लिया इसको, ठीक है। मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब तो मुझे क्या करना है, ठीक है। पहले मैं जो मेरा डेटा सेट है इसका साइज पता करना है, इसका साइज क्या है? 97। हाँ 97। तो अगर नहीं पता है तो फिर कैसे कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट डेटा डॉट शेप, ठीक है। तो 97 में 97 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हमें प्लॉट करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए तो मैं थोड़ा उसको अरेंज करना पड़ेगा इस डेटा को, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा शेप करेंगे इस डेटा को, क्योंकि हमें मैटप्लॉटलिब में हमारे कुछ एक्स एक्सिस होगा, कुछ वाई एक्सिस होगा, तो हमें बताना है ना कि इसको हमें एक्स एक्सिस में रखना है, इसको वाई एक्सिस में रखना है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल एक्स लेंगे जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, फर्स्ट वाला कॉलम, ये दोनों एक्स हमारे, और इसके बेसिस में वाई प्रेडिक्ट करना है। तो इसके लिए मैं करूँगा ये कॉमा 0 डॉट रीशेप -2 कॉमा 1। ये पाइथन की सिंटैक्स है, डेटा को कैसे रीशेप करते हो आप। और वाई एक्सिस में मैं रखना चाहता हूँ डेटा का जो कॉलम 1 है, ओके, डॉट रीशेप -1 1, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, इस डेटा को बेसिकली रीशेप कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि 97 2 था, अब मेरे को दोनों को अलग अलग करना है, तो अब मैं दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मैं अगर एक्स और वाई का शेप प्रिंट करूँगा, एक्स डॉट शेप, ठीक है, कॉपी वाई, ठीक है। तो 97 1 97 1 दोनों अलग अलग डेटा सेट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, ओके ओके ओके, लेट मी वेट,
पहले मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊँ या फिर लाइक मैं जो मैंने ये बताया अभी कि इस डेटा पे डायरेक्ट मैं ये बताऊँ कि मैंने कैसे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया या फिर एरर कैलकुलेट किया कि हमारा डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, सही है गलत है। मॉडल बिल्डिंग करूँगा। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बाई प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्ट करना है, सॉरी बाई प्रेडिक्शन एक मॉडल बना दिया जो मेरा था mx प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, plt डॉट स्कैटर, जो कि हमारा ये होता है y एक्सिस, हमने x एक्सिस को मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा आपको। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली आपकी दो चीज़ें होंगी, कुछ फंक्शन कैलकुलेट करने होंगे जिससे हम जो मैं एक्यूरेट लीनियर रिग्रेशन ड्रॉ कर सके। मैं बताऊंगा उसमें मैं क्या क्या यूज़ किया इसमें। जैसे एक फंक्शन होता है मेन फंक्शन, बेसिकली जो यूज़ होगा मशीन लर्निंग में लाइक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्रॉ करने में, जो मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। पहले मैं अभी जैसे आपने कहा कि पहले ये करके बताओ लाइक मॉडल ड्रॉ करो, तो पहले हम वो प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे कि वो मॉडल ड्रॉ हुआ कैसे, ये फंक्शंस ड्रॉ आए कैसे। max of x, similarly for y, then of y, और इसके बाद सिंपली max of y prediction। ओके ये हो गया, और ठीक है, ये मेरे बेसिकली कोड लाइन हो गया। और ग्राफ को शो कैसे करते हैं हम लोग, सिंपली कर देंगे plt डॉट शो, इसको मैं एंटर करूंगा। ओके, m कहाँ पर आ गया, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये कोड जो है, ठीक है, इस शेल को याद रखना, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने m को कहीं डिफाइन नहीं किया, मैंने c को कहीं डिफाइन नहीं किया है कि हमारे कोड में c और m है क्या, ठीक है। तो पहले और m और c में जैसे मैंने बताया था कि m और c क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारे जो y इक्वल mx और c था, m क्या था, थीटा 1 थीटा नॉट था। तो पहले उसको मैं प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वही करते हैं, स्कैटर ड्रॉ करते हैं प्लॉट उसका। सुशांत एज ऑफ नाउ डायरेक्टली कर दे, कैलकुलेशन मत कर, डायरेक्टली प्लॉट कर दे, डिस्क्राइब कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक शेल ऐड कर देता हूँ। Guys, we will cover these all things thoroughly, but due to time constraint, we are going directly with the library. मैंने एक epoch ले लिया, 0.001 ले लिया, कुछ लाइक लर्निंग रेट मैंने कहा था। फिर एक epoch वेरिएबल ले लिया मैंने 1000 लिया, बेसिकली इतना टाइम हमारा लूप रन करेगा फॉर आई इन रेंज। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या, लेकिन अभी थोड़ा टाइम की वजह से कहा तो कुछ चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ रही है। y prediction is equal to m into plus x plus c। यहाँ पर एक लाइन और मिक्स हो गई, n बेसिकली जो हमारा नंबर ऑफ डेटा सेट्स होंगे x में, then of x मैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला बेसिकली ये था -2/n, n हमारे नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं, ठीक है, इनटू सम इनटू y माइनस y प्रेड, और फिर b को अपडेट करेंगे। पहले हमने m को अपडेट किया और c को अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम -2/n into sum y minus y प्रेड, ठीक है।
सिंपली हमें अपडेट कर देना है m इज इक्वल टू जो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी m माइनस लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, और सिंपली इसको हम लोग c के लिए भी कर देंगे। c इज इक्वल टू ठीक है, और जो फाइनली हमारा एरर होगा एक्यूमुलेटेड एरर वो होगा सम y फ्रिक्शन माइनस कैपिटल Y इंटू माइनस y। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कोड है। ठीक है, इतना पार्ट। इसमें क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बेसिकली जो हमारी लाइन थी y इक्वल टू mx प्लस co किया है, जो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था पेंट में आपको कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं थीटा की न्यू वैल्यू वो अल्फा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j करते हैं कॉस्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हमने वही m के लिए और c के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, और फिर सिंपली हमने क्या किया है m इज इक्वल टू क्या होता है ये थीटा न्यू इज इक्वल टू थीटा ओल्ड माइनस अल्फा इंटू दिस, तो m की न्यू वैल्यू माइनस m की ओल्ड वैल्यू माइनस लर्निंग रेट जो l है इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट होगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पर वैल्यू एक्यूमुलेटर को कैलकुलेट करना नहीं करना वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन प्रिंट करेंगे तो हमारा एरर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं प्रेडिक्शन पे शो प्रिंट करूँगा इसको, मैंने एक्चुअली क्या प्रिंट किया स्मॉल x, ओके कैपिटल x होगा। तो यहाँ पर देखो जो अब यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ लाइन मेरे बेसिकली जो डेटा सेट्स थे, ये जितने भी डेटा सेट्स थे इस पे बेसिस पे मतलब मेरे डेटा सेट थे, और मैंने इस मॉडल को जब यूज़ किया तो एक लीनियर लाइन ड्रॉ हुई। अब मैं अगर इस पे जो हमारा ये लीनियर रिएक्शन ड्रॉ हो गया, अब मैं अगर न्यू वैल्यू दूंगा कुछ x की तो उसके बेस पे वो फॉलोइंग y प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है कि आप लीनियर रिग्रेशन ऐसे ड्रॉ करते हो, मतलब एक मैंने ब्रीफ दिया कि ऐसे हमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट कि मैंने कैसे पहले डेटा इंपोर्ट किया, numpy से दिखाया, पांडा से दिखाया, फिर मैंने सेम चीज़ मैंने आपको ये जो हमारा लीनियर रिग्रेशन कोड होता है वो बताया कैसे होता है, और फिर मैटप्लॉटलिब की मदद से मैंने कैसे उसका ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, कैसे ये किया एक स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट सेशन में या फिर उसके आगे सेशन में बताऊंगा कि कैसे किया, बट यहाँ तक लाइक बेसिक से लेकर के एक जो मैंने हैंड्स ऑन दिया, इस पर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गाइस किसी को कोई डाउट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। बाकी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करो। सुशांत इज देयर, आई एम देयर, and rest of the DDSC team is there. We will surely help you out. So thank you so much for your time. Thank you so much, Sushant, for giving us your precious time of at least 1.5 hour. No, it's okay. Sushant? Yes. Anyone want to ask something? Yes, Rohan? Nah, it was a joke, just let it go. Okay. So I am winding up the session for today. Thank you so much for joining. Thank you, guys. Okay, thank you. Akash, recording.